السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری محفل میں موجود ہیں خبروں اور تنازعات کی زد میں آئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب جہانگیر ترین صاحب، اور آن لائن اپنے گھر سے ہم سے گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں آ سکا اسٹوڈیو میں۔ ہمارے لیے بھی آپ کی صحت بہت مقدم ہے جی، وہ جو کہ وزیر اعظم صاحب آئسولیشن کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، جی جی، تو جو چیز وزیر اعظم صاحب ریکویسٹ کر کے گئے وہ ہم فوراً مان لیتے ہیں، تو ورنہ میں ضرور حسب حال میں حاضر ہوتا، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو آپ کے پروگرام میں آ کے اتنا خوش ہوتا ہوں جتنا بچپن میں گجرات عید میلے میں جا کے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ یقین کریں جنید صاحب، مجھے تو کئی دفعہ یہ آپ کے جو گوری صاحب ہیں ان کو غور سے دیکھنا پڑے گا، یار دانشورے کے بھائی پنگوڑے والا ہے۔ چودھری صاحب، میں بھی میلے میں گھس کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ نہیں، آپ تو چھپڑ میں گھس کے بھی بڑا خوش ہوتے ہیں، بلکہ بزرگ کہتے ہیں کہ چھپڑ چپڑیا گوگا تے مجھ مشکل نالی باہر نکل دینا۔ اچھا چودھری، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم کی باتوں کا بہت احساس ہے، لیکن بعض واقفہ نے حال کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو آپ وزیر اعظم کے لیے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، ہم حق سچ کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ بالکل۔ یہ جو لڑکا آپ نے بٹھایا ہوا ہے شو میں آج، جہانگیر ترین، جی جی، اس منڈے نال زیادتی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس ایشو پہ، یعنی یہ شوگر سکینڈل والے ایشو پہ، آپ اور جہانگیر ترین صاحب ایک ہی پیج پہ ہیں۔ ظاہر ہے جنید صاحب، ہماری بھی چونکہ شوگر مل ہے، اسی کڑا فیکٹری چ دوانے بنانے ہیں، بلکہ جنید صاحب ہماری شوگر مل تو اس وقت کی ہے جب پاکستان میں ابھی چائے میں چینی نہیں تھے ڈالتے، شکر ڈالتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سکینڈل کو اتنی ہوا دینا کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سبسڈی لینا شوگر مل مالکان کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، یہ ایک قانون بنا تھا، اس کی وجہ سے یہ لی جاتی ہے۔ لیکن جی صاحب، بات یہ ہے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں وہ کیڑے کہن ڈے نے سیدھی گل کر، میں آپ کہن ڈے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں، آپ کھل کے بات کیا کریں۔ چلے جی صاحب، ایسے ہی صحیح۔ اچھا، بہرحال کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبسڈی کا طریقہ کار شروع کیا تھا، یہ بھی شوگر مل مافیا نے خود ہی شروع کروایا تھا، اور خود ہی یہ قلت پیدا کرتے ہیں ملک میں، اور پھر چینی باہر بھیج دیتے ہیں، مزید قلت پیدا ہو جاتی ہے، تو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، ہر موقع کے اوپر دو رائے ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک بحث والا معاملہ ہے کہ کس کی رائے ٹھیک ہے اور کس کی غلط ہے، جی، مگر میں یہاں پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر قانون تھا اور قانون کے تحت یہ سبسڈی لی گئی ہے، تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی اتنے ابیلا کرنے کی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ قانون میں کوئی سکم نظر آتا ہے یا کوئی غلطی نظر آتی ہے تو نواں قانون بنا لو۔ ہوں کہڑا قانون بنانا سے تمہیں نواں کچھ زیادہ مدانی لینی پینی ہے۔ ترین صاحب، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، آپ کچھ نہیں بولیں گے اس مسئلے میں؟ جنید صاحب، میں تو اپنا موقع پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ سبسڈی بھی ختم کر دینی چاہیے، یہ کوٹے بھی ختم کر دینے ایک چاہیے۔ منٹ ٹھہر جو، کدھر نہ کہہ دینا کہ ملا بھی ختم کر دیں۔ نہیں چوئی صاحب، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینی کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے۔ جی جنید صاحب، بالکل، ہم تو چاہتے ہیں کہ نئے قانون بنا دینے چاہیے، اور اگر ان کو کوئی اور طریقہ اچھا نظر آتا ہے تو مل بیٹھ کے وہ کر لیں۔ اچھا، کوئی ایسی کوئی اڑی تو کرنی نہیں رہے جنید صاحب۔ اور رہی بات یہ جہانگیر ترین صاحب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک اچھی بات نہیں ہے۔ آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کی حکومت بنانے میں تحریک انصاف کی، تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔ ذرا واضح کر دیں چوئی صاحب، اس میں میرا ہاتھ بھی شامل ہے اور میرا جہاز بھی شامل ہے۔ وہ جہاز دی گل کرن ڈیا، وہ نہ ہی ہاتھ رکھے، اور کہڑا تسی آپ مٹی گو کے پھڑان ڈے۔
और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जुनैद साहब के ये जो फाउंडर मेंबर हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, जी जो खान साहब के दोस्त हैं इमरान खान साहब के, जी हाँ जी हाँ। उनको इस तरह का सलूक उनके साथ और उनको एकदम पार्टी से जो परे कर देना है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो की बुजुर्ग कहते हैं कि जिन्ना छठे दोस्त हुकूमत उन्होंने दी भीड़। अच्छा चौधरी साहब चले इनका मामला तो ये जाने और इमरान खान साहब जाने, आप फरमाएं कि आपके घर तशरीफ लाए थे ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक साहब, उनके साथ क्या खिचड़ी पकाई है आपने? बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं सियासी हलकों में। पहली गल तो खाजे सन दोवें, खाजे खिचड़ी ना रजदे ने, भावें पतले पतले खाजे होण जुनैद साहब, ये खिचड़ियां खुचड़ियां नहीं खाते। ये जो खान बैठ दे फिर दाल चौलों की बरात ही खाते जे। तो खिचड़ी इसलिए कोई नहीं पकी, वो मेरी खबर लेने के लिए आए थे। लेकिन चौधरी साहब सारी सियासी गुफ्तगू हुई है, आपने शरीफ बरादरान पर अपने एहसानात की एक लंबी फहरिस्त गिनवाई है। ਉਹ ਆਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਵਹਾਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਨੇ ਆ। तो बीच में शरीफ बरादरान का जिक्र कैसे आ गया? आपने कहा कि हमने उनके लिए ये किया ये किया ये किया। तो ये तो नेचुरल बात है ना, जाहिर है वो नून लीग के हैं तो उस हवाले से फिर बात छिड़ जाए तो फिर करनी तो पड़ती है ना। और वैसे भी जुनैद साहब मैंने नहीं कोई बात की, वो तो पुरेश साहब बता रहे थे, उनको याद करवा रहे थे कि हमारे अल्लाह के फजल से बड़े एहसानात हैं इन लोगों पे। ये जब चले गए थे जुनैद साहब, ये तो फटाफट अपने अटैची उठा के निकल गए थे मुल्क से। जी जी पीछे इनको पता ही नहीं था कि कोई अपना डंगर बच्चा भी बन के गए हैं असी अपने जाती उमरे च। मैं अपने मुंडा भेजिया उत्थे जाती उमरे, मैं यार मझां नूं तो पेछा में करदा रही यार इन्हां दे पट्ठे छट्टे भी पांदा रहे, कोई गल नहीं। रोटी छोटी तो पट्ठे छट्टे असी नहीं कदी रोके। तो फिर मैं आपको क्या क्या एहसान बताऊं जुनैद साहब, मैनू याद है कि इन्हों का बिजली का बिल बहुत आ गया तो मुंडा इन्हों का आंदा यार बिल बहुत आ गया थोड़ा कराना कितों कराइए। मैं आप गया SDO को, मैं कहा करता क्यों नहीं थोड़ा बिल? तो कहते भाई जिन्नी बत्ती बालणगे उन्ना ही बिल देंगे ना। तो मैं कहा उदों भी देना ही जो वजीर आजम सन, हुण लथ गए ने हुण तेनों बिल याद आ गया बहुत। बहरहाल फिर SDO ने नहीं मनिया, मगर मैं फिर इन्होंने बिल दियाँ किस्तां करा दी। हमजा शबाद कल्ला इधर था जुनैद साहब, जब सारे लोग चले गए पूछे हमजा शबाद को, कहते जी देखो सारे बॉर्डर गए ने मेरे को खर्चा ना पानी मैंने कुछ नहीं। और मैं कोई गल नहीं ऐसी पुत्र कोई बात नहीं, मोनस लाई दी मोटरसाइकिल मैं इन्हों दे दी। मैं मुनस पुत्र टैंकी फुल करा के इन्हों दे, मैं जा चलांदा फिर भावें भैया चुकते भावें थले रख। अद्धा घंटा जुनैद साहब किक्का मारदा रहा जी हमजा मोटरसाइकिल स्टार्ट ही ना होए। वो सूफी अंदर आ के कहते जौहरी साहब हमजा को मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होन डई। मैं मूनस नूं कहा मैं को ठीक मोटरसाइकिल दे, कहते ठीक ही हो 400 च लगा है। मूनस ने जाके बाहर 400 चाल किया स्टार्ट हुई, पहली किक ते स्टार्ट हुई। जुनैद साहब वो मोटरसाइकिल देते ना पहली किक ते स्टार्ट होया। चौधरी साहब कोई होर भी मोटरसाइकिल है जे? पुत्र 500 सीसी कोई नहीं जिसे तू पूरा नहीं। साहब इसको वॉल्वो मोटर बाइक चाहिए। तू कहोगे पुत्र तू मैसी फर्गूसन का ट्रैक्टर ले ते ओदे मोटरसाइकिल ला। चौधरी साहब सानू कोई तीसरी किक वाली दे दे जिहड़ी तीसरी किक ते स्टार्ट होवे। एक तिन्ना किकां वाली भी ले जा तू, दो किकां दी स्टार्ट नहीं हुंदी ते तीजी किक मारो ते अगों चपेड़ा मार दियो। ये जो सलमान शहबाज है जुनैद साहब, जी जी इसको बुला के पूछे आप, इसको हर बसंत पे दर्जन गुड्डियां दे 2 पिन्ने डोर दे लैके देते ने। पेचा लाना नहीं आंदा ते आके सानू लामे देंदा है। चौधरी साहब कच्ची डोर लै दी जे, गुड्डियां लिफो लैती है, लिफो गुड्डियां लैती है। जुनैद साहब तुसी ईमानदारी नाल दसो कदी चौधरी लिफो गुड्डी लै सकदे ने?
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਫੋ ਗੁੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਫੋ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਲਿਫੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ चौधरी साहब ये आप किसकी बात कर रहे हैं? ਲਿਫੋ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਫਸਾਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਫੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ अच्छा तरीन साहब, आज आप दो टोक अंदाज में ये फरमा दें, क्योंकि लोग कह रहे हैं। जहांगीर साहब जरा मुताद रहना, ये जुनैद कहता यही है कि लोग कह रहे हैं, कहता ये खुद है। नहीं तरीन साहब, लोग ये कह रहे हैं, मैं क्यों कहूँगा, लोग ये कह रहे हैं, नहीं यार सच्ची गल करो जुनैद साहब लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग आपसे राब्ते कर रही है, या कुछ और लोग ये भी कह रहे हैं कि आप नून लीग से राब्ते कर रहे हैं। हकीकत हाल क्या है? नहीं जुनैद साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हम सियासतदान तो आपस में मुलाकातें करते ही रहते हैं। जो आप इसमें से मतलब निकाल रहे हैं ना, वो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं कल भी पीटीआई का था, मैं आज भी पीटीआई का हूँ और आइंदा पीटीआई का ही रहूँगा। जुनैद साहब तिया ने गलत मारे कल तक तो ठीक सी, आज तो कल गलत जे विच इसका मतलब है जैसे कोई ना कोई तो फिर खिचड़ी पक रही है ना, जो आप जानते हैं। ओ यार पहले खिचड़ी तू खाजे साथ रफीक होरां ने पकाई है, हुण उथों पतीली चुक के जहांगीर श्रीनगर रख देती नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब टेस्ट शुरू हुए तो पता चला कि यहाँ पे तो 300 कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। उसके बाद अचानक पता चला टेस्टों का सिलसिला रुक गया है। पूछा गया क्यों रुक गया है, पता चला जी 5000 टेस्ट किट्स आई थी, वो सारी की सारी उठा के तो जो हिंदू अक्सरियती इलाका है जम्मू का, वहां पे दे दी गई। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि अपने असल मौजू की तरफ आए, एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के साथ कि हमें शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये रह जाता है कि हम अपनी औलाद को प्रॉपर टाइम कभी नहीं दे सके। अक्सर ये होता है ना कि ये तालीम के खास हवाले तौर से, पे आजकल लॉकडाउन के दिनों में ज्यादा ये महसूस हो रहा है यही मैं कहना कि लगा हम था। टाइम देते ही नहीं थे बच्चों हाँ, देते नहीं थे। अब जब कुदरत ने आपको मजबूर कर दिया कि आप टाइम दें, तो आप बच्चों को टाइम दें। फिर आप वो जो सारे आपके छोटे छोटे पछतावे थे कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता, अब तो वक्त ही वक्त है। तो आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। आप अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने नहीं जाएं, बल्कि उनको घर में रह के वो सारी बातें जो आप सोचते थे कि कभी वक्त मिलेगा तो मैं बच्चों को ये बताऊंगा, मैं उनकी तरबियत करूंगा, मैं उनको पढ़ाऊंगा। मैंने सारी उम्र बच्चों को पढ़ाया नहीं, खुद माँ को पढ़ाते देखा है बच्चों को, लेकिन मैंने खुद बच्चों को नहीं पढ़ाया। अब बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों को दीन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि नौजवान नस्ल के जहन में ये शुबहात होंगे, हमारी दीनी रवायात के हवाले से, हमारी सकाफती रवायात के हवाले से, माशरती रवायात के हवाले से, या बच्चों ने सवाल किया हमारे पास कभी इतना वक्त ही नहीं था। तो अब वक्त है, बच्चों के साथ दिन का कोई हिस्सा आप मखसूस कर लें, कोई उसको बाकायदा शक्ल न दें क्लासरूम की, इनफॉर्मल बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में बच्चों के साथ गुफ्तगू करें, लेकिन करें जरूर। बच्चों के साथ दिन का कोई एक हिस्सा गुफ्तगू पर मुश्तमिल जरूर होना चाहिए दिन में। ऐसे जैसे पहले दादी अम्मा कहानी सुनाती। एग्जैक्टली वो दादी अम्मा, आप थोड़ी देर के लिए आप दादी अम्मा बन जाए। आप तो शक्ल से भी दादी अम्मा ही लगते हैं, ये दादा बन के भी दादी लगता है। देखो जरा, इसके पोतरे कह रहे होते हैं इसको कि भाई जी ऐसा डबस्ता ना बाहर ले आके निकल जाना, ऐसा जाना स्कूल। अच्छा जी, अब मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा था वो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक, इसलिए कि देखें आज पूरी दुनिया इस वबा की जद में है, लेकिन शायद ही दुनिया का कोई खित्ता ऐसा हो जो अपने आप को बिल्कुल बेआसरा, बिल्कुल समझ रहा हो कि हमारा कोई मददगार नहीं है, हमें कहीं से कुछ नहीं आ रहा, और बिल्कुल हेल्पलेसनेस, बिल्कुल बेयारो मददगार। ये जो एहसास है ना, ये बीमारी और भूख से ज्यादा तकलीफ दे एहसास है कि हम तक कोई नहीं पहुंच रहा और किसी ने पहुंचना भी नहीं है। इस अजियत से कौन गुजर रहा है?
इस अजियत से दुनिया का कौन सा खित्ता गुजर रहा है? कश्मीर। मकबूजा कश्मीर। उस बदकिस्मत खित्ते का नाम मकबूजा कश्मीर है। वहीं से लॉकडाउन हुआ था। आप सोचें, और लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन की अजियत आपने कश्मीरियों की महसूस नहीं की, तो आज पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है। तुम देखो कि उन बेचारों का क्या हाल होगा कि जहां पे वहां टेस्ट ही कोई नहीं हो रहा है, टेस्ट ही कोई नहीं हो रहा है। जब टेस्ट शुरू हुए तो पता चला कि यहाँ पे तो 300 कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। उसके बाद अचानक पता चला टेस्टों का सिलसिला रुक गया है। पूछा गया क्यों रुक गया है, पता चला जी 5000 टेस्ट किट्स आई थी, वो सारी की सारी उठा के तो जो हिंदू अक्सरियती इलाका है जम्मू का, वहां पे दे दी गई। अब ये बंदा कोई यकीन कर सकता है बात? ये भी नहीं कि 5000 में से 2000 3000 उठा के दे दी जाए, जबकि अक्सरियत जो है वो ज़ाहिर वैली की है, मुसलमान मुस्लिम अक्सरियती। तो वो जो 5000 किट्स हैं वो सारी की सारी उठा के वो दे दी गई हैं जम्मू में हिंदू अक्सरियती इलाके। अंदाजा करो, बहुत ही बेहिस्सा आदमी ये आया है मोदी जो है, वरना गंगाराम भी तो हिंदू था ना जी। इधर उसने देखे कोई बगैर किसी तफरीक के इंसानों के लिए कितनी खिदमत तो है। उसका नतीजा देखो ना कि मैं ये 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे बाकायदा एक वेव थी कि सर गंगाराम को लाहौर का बेटा कहा गया है, और लोगों ने बगैर किसी मजहब की तखसीस के उनको अप्रिशिएट किया है। हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, और उनके ज़हन में भी कभी कोई तखसीस नहीं थी कि जनाब अली ये कोई हिंदुओं के लिए मैं कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए कर रहा भाई हूँ। जी जो खुद इंसान होता है ना, वो सबको सबसे पहले इंसान समझता है। तुम्हें पता है सर गंगाराम ने हमारे शहर उकाड़ा में 1 मेगावाट का बिजली घर भी नहर पे बनाया हुआ है। बेशुमार खिदमात हैं जी उनकी, हर हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ये हेल्थ के हवाले से बड़ी कमाल खिदमात हैं। ये तो मैं समझता हूं कि अब ये मुझे ऐसे महसूस होता है कि मोदी खुद भी अब बहुत शर्मिंदा है, मगर वो क्या कहते हैं कि टीठ हो के बेचारा लगा हुआ है। उसके अपने उसके मुल्क के अंदर बेशुमार बड़े बड़े लोगों ने और बड़े दानिश्वरों ने और राइटरों ने और शायरों ने उसके खिलाफ बोले हैं। वो लोग उन्होंने कहा कि ये इंसानियत नहीं है जो ये कर रहा है। तुम देखो कि 23 अरब डॉलर का कोरोना रिलीफ पैकेज दिया है हिंदुस्तानी हुकूमत ने, 23 अरब डॉलर का, ठीक है। और उसमें से मकबूजा कश्मीर में अब तक कितनी इमदाद तकसीम हुई होगी आपके ख्याल में? आपका अंदाजा क्या है कितनी हुई होगी? 1 रुपया भी नहीं, नॉट ए सिंगल पैनी अभी मकबूजा कश्मीर में तकसीम नहीं की गई। वही न जी हैवानियत है बिल्कुल। वो तो इंसानों वाली हरकतें ही नहीं कर रहे ये लोग। इस तरह मेरा ख्याल है पहले कभी भी नहीं था देखा किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं था। वो बेचारे मजलूम जो है वो तो 8-9 महीने पहले से इस सूरत हाल से गुजर रहे थे, और ऊपर से मतलब उनके ऊपर ये कोरोना का जो अजाब आया, मतलब अजीब एक समझ में नहीं आ रही बात कि उन बेचारों की मदद को कौन पहुंचेगा। हाँ जी, यानी जब ये कश्मीर में किया लॉकडाउन तो सारी दुनिया में कोई बात नहीं कर सका, कोई उनको आजाद करा नहीं सका कोई, अगर अल्लाह तो है ना फिर ऊपर। और सबसे अहम जो एहसास है ना इस कोरोना वायरस के फैलने के बाद और लॉकडाउन होने के बाद, हर शख्स के अंदर यही जागा है कि आखिर फिर अल्लाह तो है। बेशक। और मैं समझता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान भी अगर जिस बंदे को ये एहसास नहीं हुआ वो बंदा है ही नहीं, उसके सीने में दिल है ही नहीं, ना उसके खोपड़ी में मगज है ना उसके सीने में दिल है। अच्छा तुम एक तरफ देखो कि कोरोना की मुसीबत पड़ी हुई है, किसी को दूसरे किसी काम की होश ही नहीं है, लेकिन ये अजीब हुकूमत है हिंदुस्तान की कि इन हालात में भी मकबूजा कश्मीर में वहाँ पे वो खेल क्या खेल रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज कर दी है, यहाँ पे इसको किसी न किसी तरह से हिंदू अक्सरियत इलाका बना दिया है। वो वहाँ पे डोमिसाइल का कानून तब्दील कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जी आप वहाँ पे कुछ भी करने गए हो, जो तालीम की गर्ज से भी वहाँ पे गया हुआ है 6-7 साल से वहाँ पे है, उसको भी डोमिसाइल दे दो। मतलब उन्होंने मंडी लगा, आप सबसे धनिया लेने अगर मकबूजा कश्मीर गए थे वहाँ रुक गए तो ये ले डोमिसाइल पकड़। मगर ठंडा डोमिसाइल होगा क्योंकि आप धनिया खरीदने गए। देखो अगर प्रॉपर्टी का वो पहले कानून खत्म कर चुके हैं, कोई बंदा भी मकबूजा कश्मीर में जाके हिंदुस्तान की किसी भी रियासत से वो जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कानून पहले ही खत्म हो चुका है। तो मतलब वहाँ की जो मुस्लिम अक्सरियती स्टेटस है उसको खत्म करने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक, चाहे उनको प्लास्टिक के हिंदू बना के खड़े क्यों ना करने पड़े। वही साहब है ना कि एक बंदा एक दोस्त के पास जाता है और को हफ्ता को रहता है, उसके बाद हमें बातें करते हुए उसको कहता है कि यार मैं
ਤੈਨੂੰ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਚਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸੋਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਹੈ हाँ तेरे मुंह की गल नहीं तो हर पासियों ही बहुत बुरा लगा मुझे समूदी का भी यही हिसाब ये है याद कोई चाला कोई सोच कोई हरकत उसकी अच्छी है ही नहीं है ये देखो ना एलओसी पे फायरिंग करवा फायरिंग कराई हाँ जी कोई मेरा मतलब है कि तू यार तेन की होता है वो जिस तरह सुता पिया बंदा नहीं कुराड़ा एक हफ्ते में 154 बार एलओसी पे फायरिंग की गई है। एक हफ्ते में 154 बार। अच्छा उसके तुम देखो कि ये मतलब कितना चालाक ज़हन है इसका कि वहाँ पे वो आबादी के अंदर से मकबूजा कश्मीर में से ये फायर किया जा रहा है। अब जाहिर है जब आप सोर्स को डिटेक्ट करते हैं पता चलता है कि जनाब यहाँ से यह फायरिंग की गई है तो जब आप रिटेलिएट करेंगे जवाबी फायर करेंगे तो लामाला ये होगा कि वहाँ पर 2-4 सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो जाएंगी वो मुसलमान है ठीक है। अगर वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाती हैं तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कहेगी देखे पाकिस्तानियों ने आपको मारा है ठीक है पाकिस्तानियों ने आपको मारा है यानी कैसा खेल खेल रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से निपटने में मसरूफ है तो ये हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हिंदुस्तानी फौज और हुकूमत देखो कितना मकरू खेल खेल रहे हैं ये यार ये भी कोरोना ही है कोरोना भी ऐसे ही कर रहा है ना कि उसका ना पता चल रहा है ना को उसके अंदर को हमदर्दी नजर आ रही है ना को उसके अंदर इंसानियत नजर आ रही है तो यही हरकतें ये इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियों की और फौज की और खुद हुकूमत की है। हाँ जी नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अच्छा किस मुल्क का कौमी खेल है कबड्डी? इंडिया नहीं बांग्लादेश। आप हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। कबड्डी है उसे सर मच्छियां कबड्डी कौडी 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 प्यारे बच्चों आज पीरियड है फिजिकल एजुकेशन का और हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर। सर अब जब प्यारे बच्चे कहते हैं तो हमें कह तो लेने दें आगे से कि हाँ जी सर फिजिकल एजुकेशन भी अच्छा सब्जेक्ट है मगर बज़्म अदब का पीरियड भी शुरू करें। आप बाअदब हो जाएंगे तो फिर बज़्म अदब का भी कर लेंगे। बाअदब ये हम आपके आने पे क्या ऐसे ऐसे किया करेंगे झुकते करते हैं झुकते अरे झुकते नहीं कर रहे सर क्लियर कर रहे सर ये उम्र में बहुत बड़ा है ये हमें गालियां भी देता है और सर हमारी चीजें भी छीन के खा जाते हैं। अच्छा चले यार ये झगड़े की बातें बाद में करते सर हैं। ये बंदर किला भी स्पोर्ट्स के जुमरे में आता है कि नहीं? नहीं हम उन स्पोर्ट्स की बात करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे तस्लीम शुदा है रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स हैं। जी जी और बांदर किले में बांदर तो रिकग्नाइज है मगर किला नहीं रिकग्नाइज। लेकिन बांदर के लिए सर बांदर बुआते करते हैं बंदरिया क्यों करती है बात फिर आप कहते हैं कि हम तो बाअदब हैं। सर बाअदब भी बात कर रहे हैं बांदर नूं इंसाफ कहने लग पई है यार बहुत मुश्किल है आपको पढ़ाना। अच्छा ये बताएं बहुत आसान सा सवाल है दुनिया का मकबूल तरीन खेल कौन सा? सर जुआ ये खेल है ये जुर्म है गुनाह है। वो खेलने वाले तो यही कहते हैं खेल रहे हैं। आप बताएं जी। स्नोकर सर स्नोकर सर सर फुटबॉल 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 ठीक है फुटबॉल लेकिन आपको यह तो पता है कि फुटबॉल जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलर खेल है। क्या आप बता सकते हैं कि फुटबॉल से वाबस्ता प्रोफेशनल खिलाड़ियों की तादाद दुनिया भर में कितनी होगी? प्रोफेशनल से मुराद है जो क्लब लेवल के भी होंगे लेकिन उससे पैसा कमा रहे होंगे अंदाजन उनकी तादाद क्या होगी? सर लाखों में है लाखों में होगी जी जी करोड़ों में है सर बिल्कुल ठीक है। कमोबेश 3.25 करोड़ प्लेयर्स जो हैं वो फुटबॉल से पैसा कमा रहे। सर मुझे ना झूठा पढ़वाएं आप 3.25 करोड़ के लाख बना ले वो लाखों में हो जाएगा। अच्छा जी फुटबॉल के बाद सबसे पॉपुलर खेल कौन सा होगा आपके साथ? गोल्फ गोल्फ और नहीं जी आप क्रिकेट सर क्रिकेट जी सर वो जो होती है वो फुटबॉल जो बैजवी फुटबॉल होता है नहीं जी आप बताइए। रग्बी नहीं सर बुल फाइटिंग नहीं यार क्यों जी बुल साहब आप बताओ। सर मैं तो स्नूकर खेलता हूँ। सर वॉलीबॉल नहीं दूसरे नंबर पर बैडमिंटन पॉपुलर है जिसके 2 करोड़ 20 लाख प्लेयर है प्रोफेशनल प्लेयर। वाह जी वाह बहुत अच्छा। अच्छा आपने कहा था क्रिकेट जी सर। क्रिकेट का कौन सा नंबर है पॉपुलैरिटी के हवाले से दुनिया में? तीसरा सर
नहीं, क्रिकेट का दुनिया में नंबर 7वां है। अच्छा 7th नंबर की मोस्ट पॉपुलर गेम है क्रिकेट। वैसे मेरी राय ये थी कि क्रिकेट शायद इससे भी पीछे का खेल है, क्योंकि मखसूस मुल्कों में खेला जाता है। खास तौर पे मेरे जहन में था कि सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज में खेला जाता है। इसके बावजूद चूंकि आबादी ज्यादा है उन मुल्कों की, इसलिए वो 7th मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है क्रिकेट। अच्छा जी, आप बताएं कि वो कौन सा खेल है जो रिकग्नाइज हो चुका है तकरीबन, लेकिन इस वक्त वो लीस्ट पॉपुलर है, यानी सबसे कम मकबूलियत का हामिल है। कौन सा खेल है जी बताइए? कबड्डी। शाबाश। चिश्ती से ले दे जाएगा आगे। सर जी ये गोगा जी भी पहले कबड्डी के प्लेयर थे, छोटी सी बात की वजह से उन्होंने निकाला। क्या हो गया? और बाकी सारे दे कपड़े चौके ले गए सी। अच्छा, किस मुल्क का कौमी खेल है कबड्डी? इंडिया नहीं, बांग्लादेश। आप हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। कबड्डी है, वाह। उथे सर मच्छियां कबड्डी कौडी। अभी हैरत अंगेज बात है, बांग्लादेश का कौमी खेल जो है वो कबड्डी है, जो खुद भी गालिबन कबड्डी के वर्ल्ड कप में शरीक नहीं हुई थी वहां की टीम। लेकिन मोस्ट पॉपुलर खेल जो है बांग्लादेश का वो क्रिकेट ही है, लेकिन कौमी खेल जो है वो कबड्डी है। अच्छा जी, एक बड़ा अजीब सवाल है, आप बताएं कि दुनिया में मुख्तलिफ खेल हैं, ज्यादातर जो खेल हैं वो बॉल से खेले जाते हैं। सबसे छोटा बॉल जो है साइज में, वो किस खेल में खेला जाता है जी बताएं? स्क्वैश। यस, स्क्वैश सबसे छोटा है। और उसके बाद किसका नंबर आता है उससे थोड़ा सा बड़ा? गोल्फ। और सबसे बड़ा बॉल ये सर जी ये किस खेल में सबसे बड़ा बॉल इस्तेमाल होता है? सर फुटबॉल में? नहीं, बास्केटबॉल। अच्छा अच्छा जी, इस सवाल का जो भी जवाब देगा ना, उसे मेरी तरफ से ब्रेक में बर्गर इनाम दूंगा। बर्गर कौन सा, फिश या चिकन? नहीं, वही जो अंडे वाला खाली बर्गर होता है यार। सर कुछ दो जवाब। सर कोल्ड ड्रिंक है सर? कोल्ड ड्रिंक भी चलेगी। चले सर, फुल याशी। अच्छा जी, बताएं कि दुनिया में कौन सा खेल है जिसके प्लेयर्स को मजमूई तौर पे सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता है? मैं बता सकता हूं मगर बर्गर अच्छा नहीं। चलो मैं तुम्हें KFC का बर्गर खिलाऊंगा। चलो फिर बता दे। चलो बताओ। सर सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले जो प्लेयर है ना जी, वो रग्बी के। नहीं, अब वॉलीबॉल के। नहीं, वो अपना जो है गोल्फ। सर ऐसे कैसे लगा रहा है ये? और यार कोई ना कोई तो होगा, बर्गर तो लेने दो। यार बस छोड़ दो, तुम्हारी किस्मत में नहीं है बर्गर। अब सबसे ज्यादा बास्केटबॉल के जो प्लेयर हैं ऑस्टन पैसा कमाते हैं। अच्छा एक प्लेयर जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर ऑस्टन $50 लाख सालाना कमाता है बास्केटबॉल। वो सर जो ऐसे ऐसे करके हाँ जी, असल में वैसे ऐसे नहीं, असल में वो डॉलर बना रहे होते हैं। वाह वाह वाह। और सारे इकट्ठे करके तो टोकरी च पा के ले जाते। अच्छा, ज्यादातर स्पोर्ट्स में ज्यादा शॉटें लगाने वाला प्लेयर जो है वो अच्छा गिना जाता है, फातेह गिना जाता है, फतह की जानिब जाता है। वो कौन सा खेल है जिसमें कम शॉटें लगाने वाला जीतता है? वो जी अब्बू जो सुबह सुबह लड़का काम पे नहीं जाता, वो खेल। गोल्फ सर। गोल्फ। अच्छा सर इसको किसी ने बताया होगा। क्यों? गोल्फ तो अमीरों का खेल है, ये तो तेल बेचता है। अच्छा जी, वो कौन सा खेल है जो 1901 से पहले गैर कानूनी था? हाँ खेलने पे पाबंदी थी। अच्छा अपना क्रिकेट जी? नहीं 1901 से पहले सर हॉकी? नहीं बाबा, ऊंट रेस। बॉक्सिंग। अच्छा माय गॉड, मेरे जेहन में आया भी है मोहम्मद अली के लिए। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सवाल है। अब ये बताएं कि वो कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को जितनी मर्जी बड़ी इनामी रकम दी जाती है? ये रिवायत है, अब उस पर अमल कहीं होता है कहीं नहीं होता, लेकिन रिवायत यही रही है कि इनामी रकम जो है वो सिक्कों में दी जाती है। क्या करोड़ों डॉलर दिए जाए, लाखों डॉलर दिए जाए, लेकिन सिक्कों में पेमेंट की जाती है। बोरियों में डाल के दी जाए। हाँ, कौन सा खेल है? शतरंज जी? नहीं, तो फिर सर 12 टर्न ही हो सकती है। घुड़दौड़ के जो जोकीज होते हैं, घुड़सवार होते हैं, इनको सिक्कों में पेमेंट की जाती है। ये रिवायत है। थैंक यू सर, मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ सर। सही बात है, वरना ये तो घोड़ों को फाक डाल के ही आ जाता था। अच्छा जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने एक साइंसी इजाद भी की हुई है और बड़ी मारूफ साइंसी इजाद है वो? अच्छा सर अपना हफीज प्रोफेसर। बॉक्सिंग का प्लेयर है रॉकी मार्शियानो। उसने फैक्स मशीन इजाद की हुई है। अच्छा अच्छा जी। हाँ,
बहुत अच्छे। वो मेरा ख्याल है जब को सोना मारता था ना तो वो यही सोच के मारता था कि फैक्स हो रही है। तो सर ये हफीज को ऐसे प्रोफेसर कहते फिर? अच्छा जी, बताएं वो कौन सा खेल है जिसके मैदान या कोर्ट में तब्दीली की गई थी एक हादसे के बाद? नहीं, आपके ज़हन में होगा। टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है सबसे बड़ा, विंबलडन। विंबलडन 1949 तक उसके कोर्ट पे जो घास की लंबाई होती थी वो 2 इंच हुआ करती थी, लेकिन 1949 में यह हादसा पेश आया कि उसी घास में से एक सांप ने निकल के प्लेयर को डस लिया था। उसके बाद उसके घास की जो लंबाई है वो कम करके ग्राउंड लेवल पर कर दी गई। ओ, वो टापरे होते हैं ना खेलते हुए, तो सांप का नीचे घर होगा, तो उसको गुस्सा चढ़ गया होगा, जैसे बुजुर्ग नहीं गुस्सा कर जाते हैं, कौन छत से टपन रहे आए, सांप ने फिर बाहर निकल के गुस्से में डांगा। सर जिसको सांप लड़ा था उसको कप वैसे दे दिया होगा। अच्छा, स्पोर्ट्स का सबसे कम शौक रखने वाली कौम कौन सी है, जहां पे स्पोर्ट्स ना होने के बराबर है? इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी जो नुमाइंदगी है वो सबसे कम होती है। सर अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान तो बहुत तरक्की कर गया। सिंगापुर, और दूसरे नंबर पे नीचे से यूएई। सर यूएई वाले तो बेचारे मजबूरन खेलों में हिस्सा नहीं ना ले सकते। उन्होंने वो जो तोप पहनी होती है चोगा सा, वो पहन के ना बंदा दौड़ सकता है, ना किक मार सकता है, ना कोई शॉट मार सकता है। वो फिर बेचारे उसको इकट्ठा कुट्ठा करके एक जगह पे बैठे ही रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बब्बू भी बड़ा ही कमाल क्या फनकार, क्या बड़ा ही याद रहने वाला बंदा था। आज तक वो हमें भूले नहीं है। ये मस्ताना साहब, बब्बू बराल आज भी ऐसे लगता है कि कहीं इधर से आ जाएंगे और आके कोई ना कोई हमें ऐसी बात करेंगे कि चेहरे मुस्कुराना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले सबसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कोरोना की वजह से रिकॉर्डिंग्स का आगे पीछे होना और फिर कभी किसी वक्त एडवांस हो जाना और रौले गौले में ये इस बात का नहीं पता चला और हम जिक्र नहीं कर सके कि बहुत बड़े हमारे फनकार और बड़े ही कमाल शख्सियत और बड़े खूबसूरत इंसान असद बुखारी साहब फौत हो गए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामवर आदमी थे और हर मैदान में, फिल्म के हर मैदान में वो बड़े आदमी थे। फनकार बहुत बड़े थे और फनकार जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें भी एज हीरो कमाल किया है। सुपर हिट फिल्में दी हुई हैं, सुपर हिट फिल्में एज हीरो, एज विलन बहुत हिट आदमी थे, बहुत हिट। जैसे मदर शाह साहब उस दौर में बड़े आला विलन पाए गए और इसी तरह असद बुखारी साहब भी। इन लोगों के डायलॉग मशहूर हो जाते थे, इन लोगों के एक्शन मशहूर हो जाते थे जो फिल्मों में ये करते थे। सर भट्टी पिक्चर्स, नेहसन भट्टी साहब का इदारा उस टाइम बामे अरूज पे था, उस इदारे के ये परमानेंट विलन थे। हाँ 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 हाँ, कैफी साहब डायरेक्टर होते थे भट्टी पिक्चर्स के, और वाकई भट्टी पिक्चर्स जो है वो नंबर 1 अदारा गिना जाता था फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से। उनके विलन खुद अपनी प्रोडक्शन करते थे। असद बुखारी साहब बहुत कमाल फिल्में बनाई हैं उन्होंने, बड़ी पॉपुलर फिल्में बनाई। आंसू बिल्ला चैंपियन। हाँ जी, बड़ी बहुत बड़ी फिल्म बनाई। नवाब। अच्छा, आप ये सुन के हैरान होंगे कि शायर भी थे। हाँ जी, कई गाने भी उन्होंने खुद लिखे हुए। फिर फिल्म की स्टोरी लिखने में खुद बड़े इन्वॉल्व होते थे। राइटिंग सेंस बड़ी थी, डायरेक्शन तो दी उन्होंने, वो तो अपना नाम भी लिखा। मेरा ख्याल है किसी फिल्म की बतौर मुसन्नफ भी उनका नाम चलता है और उन्होंने लिखी हुई है। मुझे उनके पास बैठने का काफ़ी दफ़ा शर्फ हासिल है। तो मुझे वो बताते थे कि मैं जब फिल्म बनाता था तो मैं उसकी स्टोरी में, कहानी में, उसके गानों में, उसकी मौसीकी तरतीब देने में, हर चीज़ में मैं इन्वॉल्व होता था। मुझे एक एक चीज़ जो है ना जी वो याद होती थी और मैं हर चीज़ में बैठता था, खुद अपनी तबीयत से सारा कुछ बनवाता था जी। और फिर ये सारा कुछ तो चलो और भी लोग करते हैं जी हाँ, बहुत ही मुखय्यर आदमी थे, नो डाउट। ये भी मैंने खुद देखा अपनी आंखों से और लोगों से भी खुद सुना है कि वो बताते हैं कि जब भी स्टूडियो तशरीफ लाते थे जी, बेशुमार जो वहाँ पे बेचारे मस्कीन गरीब लोग होते थे, मेहनत कश, उनकी ऐसे ही मदद करते थे, माली मदद भी करना उनकी, और
औखे सौखे वेले सबके काम आना। जी भाईजान, जो भी करेक्टर करते थे लगता था कि ये करेक्टर बना ही इनके लिए। जी 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 जी, विलन, हीरो, करेक्टर एक्टर, बूढ़ा जवान, हर किस्म का रोल किया है। और ये भी हमारे गुजरांवाला के गखड़ से बिलोंग करते थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। हाँ हाँ, पढ़े लिखे आदमी थे और इनके बुजुर्ग बड़े आलम थे जी। और बड़े पॉपुलर थे वहाँ गखड़ में, बड़ी अच्छी फैमिली थी। और अपने शौक में लाहौर आए, फिर साथ रियल स्टेट का काम बड़े हाई लेवल पे करते रहे। अच्छा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है। इसके साथ साथ एक और हमारे बहुत प्यारे फनकार रेहान साहब, जी जी, वो भी करेक्टर एक्टर भी रहे और हीरो भी आए और विलन भी आए। और उनकी जो बड़ी पॉपुलर फिल्म थी जिंदा लाश, ड्रैकुला का रोल उन्होंने उसमें किया, वो भी फौत हो गए हैं ये 2 हफ्ते पहले। उनका भी नहीं पता चला। ये भी पढ़े लिखे आदमी थे और ये लाहौर के थे, लाहौर के रहने वाले थे। और यहीं से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और अपना बड़ा खूबसूरत नाम बनाया। बड़ा इन्होंने भी वैरायटी के साथ काम किया हुआ है और हर किस्म का इन्होंने भी रोल किया है। ये चूंकि हमारे वो बुजुर्ग हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़े हुए एक अरसा बीत गया हुआ है। शाहजी को भी कोई 15-20 साल पहले उन्होंने आखिरी फिल्म की थी और रेहान साहब तो उससे भी पहले के, वो तो आए ही नहीं उसके बाद। तो वो भी चूंकि अलहदा हो चुके थे, इसलिए मीडिया को भी इतना जल्दी पता ना चल सका और ना ही इतना कोई वावेला हुआ और ना ही हम लोगों तक ये खबरें इनकी पहुंची जल्दी। रेहान साहब भी फौत हो गए और रेहान साहब के मुतल्लिक भी यही कहा जाता है कि बड़े ही खूबसूरत इंसान थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े वजी और बड़े खूबसूरत आदमी। फरंगी भी बड़ा बने हैं फिल्म में। हाँ हाँ हाँ, बड़े गोरे चिट्टे थे, इसलिए फरंगी का रोल, अंग्रेज का रोल बहुत सेठ का खास तौर पे। हाँ जी हाँ जी। ये जो रेहान साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिंदा लाश, उसमें असद बुखारी साहब ने प्रोफेसर का रोल किया था। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार देखें ये पंजाबी फिल्मों के विलन और ये वो, मगर चूंकि इंतहाई खूबसूरत चेहरा था बुखारी साहब का, बड़ा नूरानी चेहरा था, इसलिए वो प्रोफेसर भी इतने प्यारे लगे, पेंट कोट पहना हुआ और फेल्ट शेल्ट, ये वो पूरे कमाल खूबसूरत किरदार में फिट होते थे। अच्छा, फिर साथ एक और जिक्र भी करते चले, वही कोरोना की वजह से सारा कुछ इस तरह की चीजें आगे पीछे हो गई। बब्बू बराल हमारे जो बड़े प्यारे फनकार थे, उनकी भी बरसी गुजरी है। उससे पहले हमने मस्ताना साहब का भी जिक्र किया, ये चंद दिन पहले ही बब्बू साहब की भी बरसी गुजरी है। बब्बू भी बड़ा ही कमाल फनकार, बड़ा ही याद रहने वाला बंदा था। आज तक वो हमें भूले नहीं है। ये मस्ताना साहब, बब्बू बराल आज भी ऐसे लगता है कि कहीं इधर से आ जाएंगे और आके कोई ना कोई हमें ऐसी बात करेंगे कि चेहरे मुस्कुराना शुरू हो जाएंगे। बड़े प्यारे लोग थे ये, बहुत प्यारे लोग। ये बब्बू बराल भी गखड़ के थे चुके, और इसके बब्बू के जो चचा थे नजीर अली साहब, वो भी फौत हो गए हुए हैं। अल्लाह ताला इन सबको जन्नत में जगह दे। नजीर अली साहब की और असद बुखारी साहब की बड़ी दोस्ती थी। हाँ, असद बुखारी साहब ने जितनी भी अपनी फिल्में बनाई उसमें मौसीकी नजीर अली साहब ने दी, और ये धमालें और इस तरह की कवालियाँ बड़ी फिल्मों अपनी में डालते थे। और नजीर अली साहब जो हैं उन्होंने बड़ा बहुत पॉपुलर म्यूजिक दिया। असद बुखारी साहब की सारी फिल्मों का ये सारा टोला जो है ये गखड़ का था, ये गखड़ से ही चले हुए लोग थे। और यहाँ आके इन्होंने लाहौर में ऐसा नाम बनाया कि पूरे हिंदो पाक में इन लोगों का नाम हुआ। अल्लाह ताला इन सबको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और इनकी गलतियां माफ़ फरमाए। और इन लोगों ने जो इंसानों के साथ मोहब्बतें की हुई हैं, इनको जो लोगों को जो एंटरटेन किया हुआ है, उसके ही सदके अल्लाह ताला इनको इनाम बख्श दे और इनकी गलतियां माफ़ करके इनको राहत और सुकून पहुंचा दे अल्लाह पाक। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि ज़िंदगी में जो चाहे हासिल करें, बस इतना ख्याल रहे कि आपकी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।